Hello students, today we will read first chapter in class 7 history tracing changes through 1,000 years. That means कि 1000 ईयर में कितने चेंजेस आए वो सब हम रीड करेंगे. देखिए, we can see here a map is given and this is made by Al-Indrishi, a geographer that is came from Arab, and that map was made in 1154, and a person who makes map is called cartographer. Here we can see another map also in the picture. Here let us see that one, and that one map was made in 1720 by a French cartographer, and there is totally different map which we see here, and the next one is that one. So there is totally different from the one map. Map 2 is totally different from the one. So now which is shown in the map 2 is maybe more resemblance to our India map today, and this one is totally different. That we can say the southern part is shown as the upper part and northern part is shown on the lower section. So here we go with the study, and we can read the different things about history in the chapter. Let us start with more detail. Here you can see the keyword, that is cartographer, in the color blue. That is a person who makes maps. Here we go with our chapter. Take a look at map 1 and 2. We have already seen, and was made in 1154 CE. CE, that means Common Era, by the Arab geographer Al-Indrishi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Here we can see that section, which section is shown in the map 1 is totally different, which is shown in our today's map, that is our subcontinent, that is our India. In the map 2 we can see that was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different. We know very well, we have seen already that map 1 and map 2, and we found that difference already. And here we can see that even though they are of same areas, हालांकि हम कह सकते हैं कि दोनों सेम एरिया के मैप हैं, बट फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इन Al-Indrishi's मैप, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. We can see here that is our lower part, or we can see the southern part, and which is totally opposite from today's map. So here we go. Place names are marked in Arabic. That means all names are written in Arabic language. You can see in your book also that language is totally different from today's and shown in the map. So here we go, and in the map 2 we can see that English language is used, and that is totally different from the earliest map. And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh is spelled in the map as Kannauj, Kyau, in place of K, and map A2 was made nearly 600 years after map 1.
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैप 2 जो बना था वो कब बनाया गया था, कब कार्टोग्राफ किया गया था? आफ्टर 600 years of the map 1. And during which time, that duration of the 600 years, change of the subcontinent, and these changes are considerably shown in the map too. And this map seems more familiar to us, and coastal areas in particular are surprisingly detailed. Here we can see that this map was totally have resemblance like that our today's map, which we see different maps like that our political map, and in the same way this map is shown. So here we start that this map was used by European sailors. अब जो ये मैप है इसका इस्तेमाल भी तो कोई ना कोई करता था, तो इसका इस्तेमाल कौन करता था बेटा? ये जो मैप है इसका इस्तेमाल करते थे यूरोपियन सेलर्स, यूज़ करते थे मर्चेंट्स। यहाँ पर मर्चेंट्स क्यों आते थे बेटा इंडिया के अंदर? दे केम हेयर फॉर ट्रेड एंड दे यूज़ फॉर देयर वॉयस। वॉयस क्या होता है बेटा? सी रूट के जरिए जब हम जर्नी करते हैं, दैट इज़ नोन एज वॉयस। अंडरस्टैंड? Yes, let us start with the next. Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. As we can see, in the first map we see that different things are used, and Arabian language is used, and in the next map we see different things, different cartography, that is English language is used, and more explained map is shown in map 2. When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to do different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. Here we can say that when historians read documents, जब historians read करते थे documents को, maps को, texts को, that means for why they are reading these documents, maps and texts? For getting information about the past. Understand? In the past they have to be sensitive to the different historical backgrounds that is related with the different historical backgrounds, and they get to know about the real thing, about the real history in this context, in which information about the past was produced. We can say that history of past, we get to know about our past from these things. And new and old terminologies, that is the main thing we have to use, and that means terminology. What is terms? What terms used different in the new and old way? ओल्ड मीन्स पास्ट में क्या यूज़ होती थी, और एट प्रेजेंट हम उन चीज़ों को कैसे लेते हैं, वो सभी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं कि हमारे हिंदुस्तान को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, या फिर हम कहें फॉरेनर वर्ड हमारा आएगा इसके अंदर, चैप्टर के अंदर। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को वो डिफरेंट वे में, मतलब सेंचुरी के ड्यूरिंग किस तरह से इस्तेमाल करते थे, हम इसके बारे में अब रीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। In the context in which information is produced changes with time. What about language and meaning? So here we get to know context में, यदि हम बात कर रहे हैं चैप्टर के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो प्रोड्यूस करती हैं चेंजेस को, टाइम के साथ मतलब कैसे बदल जाती हैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज़। व्हाट अबाउट लैंग्वेज? अब लैंग्वेज के बारे में उनका क्या मतलब रहता है, मतलब क्या चेंजेस आए हैं लैंग्वेज के हिसाब से। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें मिला है, एग्जिस्ट मिला है, उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस में वैरायटी ऑफ चेंजेस हैं, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। एंड विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, हम कह सकते हैं कि उसमें टाइम के साथ भी चेंज आए हैं, बदलाव आए हैं।
जो मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज थी फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न वन। दैट मीन्स जो हमारे पीछे की पास्ट की पर्शियन लैंग्वेज थी वो आज की पर्शियन लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट है। एंड द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो डिफरेंस आया है केवल ग्रामर और वोकेबलरी के आधार पर नहीं आया है, बल्कि हम बात करेंगे कि उनके वर्ड्स में भी, मीनिंग्स में भी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। हेयर टेक द टर्म हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान वर्ड को ही देख लीजिए कि हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टर्म्स में यूज़ किया जाता था। जैसे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इज इट एज इंडिया। आज के दिन हम मॉडर्न इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। बट when the term was used in the 13th century, अब हम 13th century की बात कर रहे हैं, जब मिनहाज इस-सिराज एक क्रॉनिकल्स थे पर्शियन लैंग्वेज की, जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है, उनका मानना क्या था कि हिंदुस्तान से वर्ड से रिलेशन क्या है। दैट ही मेंट द एरियाज, आई हैव अंडरलाइन दिस फॉर यू बिकॉज so that you understand the well chapter. So you have also underlined these lines in your chapter, in your textbook. So here we go. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. अब हम बात कर रहे हैं कि जो एरिया जो मिनहाज सिराज ने डिसाइड किया था किसके लिए, हिंदुस्तान वर्ड के लिए, वो एरिया क्या था बेटा कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच में जितना भी एरिया आता है वो सभी एरिया हमारा किस वर्ड के कंसीडर में आता था, हिंदुस्तान वर्ड के कंसीडर में आता था, यानी कि वो हिंदुस्तान माना जाता था वो एरिया। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। अब हम बात करें कि उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया। पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया था उन्होंने, क्योंकि जो लैंड है, ये एरिया है, वो किसके अंडर आता था, डोमिनेंस के, दिल्ली सुल्तान के अंडर आता था। एंड द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म shifted with the extent of the sultanate, but the term never includes South India. अब हम बात कर रहे थे सुल्तान के अंडर, जैसे दिल्ली सुल्तान के अंडर ये एरिया जितना भी आता था उसको हम क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो एरिया बढ़ जाता था ना, एक्सटेंड हो जाता था, सल्तनत के अंडर आ जाता था, वो भी इंक्लूड हो जाता था किसके अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंक्लूड हो जाता था। मतलब कि जो एरिया बढ़ जाता था वो ऐड हो जाता था, डिडक्ट नहीं होता था। सो इन द नेक्स्ट सेंस वी कैन से दैट साउथ इंडिया नेवर यूज्ड और नेवर इंक्लूड इन द हिंदुस्तान। जो साउथ इंडिया पार्ट है वो कभी भी हिंदुस्तान टर्म्स के अंडर नहीं आया मिनहाज सिराज के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? यानी कि जो हमारे क्रॉनिकल्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो एरिया पंजाब, हरियाणा और हम कहें गंगा यमुना के अंडर आता था, या फिर जहाँ पर दिल्ली सुल्तान ने एक्सटेंड किया था इस चीज़ को, इंडिया एरिया को, वो एरिया भी इसके अंदर था, बट कभी भी साउथ इंडिया इसके अंदर नहीं आया है, यानी कि हिंदुस्तान के नाम से उसे नहीं जाना जाता था साउथ इंडिया पार्ट को। बाय कॉन्ट्रास्ट, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं। अब तक हमने बात की थी 13th सेंचुरी की, अब हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी की। जब 16th सेंचुरी में बाबर यहाँ पर रूलर थे तो उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है, यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। अब उन्होंने किस एरिया को माना, द फना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने कंप्लीट हिंदुस्तान को, यानी कि हमारे पूरे एरिया को, जिसमें जितना भी फना और कल्चर यहाँ पर आता है या फिर इसमें रहने वाले लोग, इनहेबिटेंट्स, यहाँ इस सब के लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था 16th सेंचुरी में। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे and the 14th century poet अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। अब हम देखेंगे लेटर, हमने चैप्टर में रीड किया कि किसी न किसी तरह से वो मैच करता था किससे, 14th सेंचुरी के जो पोइट थे अमीर खुसरो, बहुत ही फेमिलियर पोइट हैं बेटा,
एंड यूज़ द वर्ड, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए हिंद वर्ड. एंड वाइल द आइडिया ऑफ अ जोग्राफिकल and cultural entity like India and did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. हालांकि जो जियोग्राफिकल आइडिया था या फिर हम कहें कल्चरल एंटिटी थी इंडिया के लिए, वो डिड एग्जिस्ट, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी. जो ये टर्म थी हिंदुस्तान, वो कभी भी कैरी नहीं कर पाई थी पॉलिटिकल और नेशनल लेवल पर इस मीनिंग को, और कभी जो हम आज एसोसिएट करते हैं हिंदुस्तान वर्ड के. हियर हिंदुस्तान टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर. अब हिस्टोरियंस ने क्या किया था, टुडे हैव टू बी केयरफुल, वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थे. जितनी भी टर्म्स हमारे यहाँ यूज़ हो रही थी उन सबको वो बड़ा ही माइन्यूटली डिस्कस करते थे, हम कह सकते हैं माइन्यूटली एक्सप्लेन करते थे. सो यहाँ पर उन्होंने एक और टर्म यूज़ की है, जैसे अब तक हिंदुस्तान के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट सेंचुरीज़ में हमने डिफरेंट मीनिंग था हिंदुस्तान का. सो यहाँ पर एक फॉरनर का मीनिंग है, जो आज के दिन हम क्या मानते हैं फॉरनर को. इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. जो इंडियन नहीं है हम उसके लिए वो फॉरनर वर्ड यूज़ करते हैं. एंड इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरनर वॉज, अब मेडिवल पीरियड की बात हम कर रहे हैं तो उसमें फॉरनर वर्ड होता क्या था, वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड कल्चर. हियर वी डिस्कस दैट any foreigner is a person who is stranger and appear to say in a given village. अब हम बात करेंगे कि जैसे किसी भी विलेज में कोई ऐसा पर्सन स्ट्रेंजर जो अलग है या डिफरेंट कल्चर से आया है, तो someone who was not a part of that society and that culture, उस सोसाइटी का या फिर उस कल्चर का वो पार्ट नहीं है. और हिंदी में अब हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं परदेशी. माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं अजनबी. एंड ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर. अब सिटी ड्वेलर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अवश्य हम रिगार्ड कर सकते हैं एक फॉरेस्ट ड्वेलर से, दैट मे बी अ फॉरनर. बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर, इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड. वी कैन सी दैट हियर इज अ डिफरेंट मीनिंग गिवन फॉर द फॉरनर. एक सिटी ड्वेलर जो है वो टोटली क्या होगा, रिगार्ड किया जाएगा फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए फॉरनर. ठीक है. बट अब यदि टू पीजेंट्स हैं जो एक साथ गांव में रहते हैं, सेम विलेज में रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए फॉरनर नहीं है. रीज़न क्या है उनका, कि वो एक विलेज में रहते हैं, दैट्स वाई, नथिंग एल्स. चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन को मानते हैं, बट वो फॉरनर नहीं है, बिकॉज दैट बिलोंग टू द सेम विलेज. बोथ आर बिलोंग टू द सेम विलेज, दैट्स वाई. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. अब हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोरियंस ने कौन सी ऐसी सोर्सेज. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड्स ऑफ देयर स्टडी and the nature of their investigation. Here we can say that the different types of sources they use to know about the history, and they have to depend upon the past things and periods of their study, nature of their investigation. And last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. हमने लास्ट ईयर एग्जाम्पल्स में पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन की डायनेस्टी के बारे में. एंड इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम roughly we can say 700 to 1750, and you will notice some continuity in the sources. In the sources that
used by historians for the study of this period. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉन्टिन्यूटी या फिर हम कहें सोर्सेज के बारे में जो हिस्टोरियंस ने स्टडी के लिए यूज़ किया है इस पीरियड के. दे स्टिल रिलाई ऑन विच थिंग्स दे रिलाई ऑन, किस चीज़ के ऊपर उन्हें डिपेंड होना पड़ा. कॉइन्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर. आर्किटेक्चर दैट इज़ द बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन. उन्हें कॉइन्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ा, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ा ताकि वो हिस्ट्री को अच्छे से लिख सकें, राइट कर सकें. एंड आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो भी इंफॉर्मेशन के तौर पर उनको मिला. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. अब यहाँ पर एक बात तो हम कहेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यू नहीं मिली हमें, यानी कि कुछ गैप इसके बीच में रहता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास्ट की हिस्ट्री के अंदर मिलेगी, हमको डेफिनेटली मिलेगी. द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब कहेंगे कि जितने भी वैरायटी में हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिले हैं, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं ड्यूरिंग द पीरियड. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अब धीरे धीरे वो डिस्प्लेस्ड भी हुए हैं. जैसे कई बार हम क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो होमवर्क करते वक्त हमारा कुछ चैप्टर रह जाता है तो हम क्या करते हैं, फ्रेंड की कॉपी लेते हैं ना, और उससे डेफिनेटली हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कॉपी करते हैं. और कॉपी करते वक्त हम क्या करते हैं, उस जो पहली नोटबुक है उसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक हम कर देते हैं दूसरी नोटबुक में लिखते हुए. तो सेम थिंग हैपन हुई हमारे हिस्टोरियंस के साथ. जैसे ही उन्हें मतलब कॉपी मिली, मतलब स्क्राइब की हुई, तो उसमें काफ़ी चेंजेस थे ओरिजिनल कॉपी से. सो हेयर वी गो विद द हिस्ट्री डिफरेंट थिंग्स. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर widely available. We can say that अब जो ये टाइम आ गया था इसमें पेपर जो बहुत ही इजीली मिलने लग गया था. अब इजी हो गया था तो देखो इसका यूज़ भी कैसे हो रहा था. वैल्यू ऑफ पेपर यहाँ पे शो किया गया है. हमने देखा है कि कंपेयर करेंगे हम पहले पेपर कैसे मिलता था और अब कैसे मिलता है. सॉरी. In the middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book. 13th century का जो स्कॉलर है वो कॉपी करना चाह रहा है, ठीक है, किसी बुक को. बट ही डिड नॉट हैव एनफ पेपर. उसके पास पेपर नहीं है, काफ़ी पेपर जितना उसे चाहिए हैं. सो ही वॉच्ड द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट ही डिड नॉट वांट एंड ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट. देखिए उन्होंने क्या किया, उस मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी को वॉश किया, राइटिंग को उसे सुखाया और फिर से उसका यूज़ किया. दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ दैट टाइम. इन द नेक्स्ट सेंचुरी वी विल डिस्कस दैट इफ़ यू ब्रॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी. इतने लकी हो सकते हैं आप. नेक्स्ट सेंचुरी की बात है ये. हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर. और जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसको पेपर में रैप करके दे रहा है. दैट मीन्स तब इजीली अवेलेबल हो रहा है पेपर. सो हियर वी कैन से दैट क्वेश्चन इज राइज दैट व्हेन वाज द पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल एंड 13th और 14th century. So here we go. People use it to write holy text, chronicles of rulers, letters and techniques of saint, petitions and judicial records, and for register of accounts and taxes. So here वी कैन से दैट पीपल यहाँ पर यूज़ कर रहे थे इन पेपर का होली टेक्स्ट को राइट डाउन करने के लिए, क्रॉनिकल्स को लिखने के लिए रूलर्स के, एंड लेटर्स को लिखने के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स को लिखने के लिए जो सेंट्स बताते थे, पेटिशंस को लिखने के लिए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स रखने के लिए, या फिर हम कहें कि डिफरेंट रजिस्टर्स का यूज़ होता था अकाउंट्स में और टैक्सेस में. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल.
दैट मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट जो कलेक्ट की जाती थी बहुत ही वेल्दी पीपल के द्वारा कलेक्ट की जाती थी, रूलर्स के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के द्वारा और टेम्पल्स के द्वारा. एंड दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. अब जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स थे ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्टोरियंस को, और ये उनके लिए दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होते थे यूज़ करने के लिए. अब यहाँ पर आर्चीव की गिवन है डेफिनेशन कि आर्चीव्स क्या होते हैं बेटा. अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स आर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर, कि ऐसा प्लेस जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या फिर हम कहीं मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है. दीज आर नोन एज आर्चीव्स. There were no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. I have already told you that what is a copy work, and here the copy work is done by the scribes. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. यदि आपने कभी भी अपने फ्रेंड की कॉपी से होमवर्क किया है तो ये बहुत ईजी काम नहीं है, आप जानते ही हैं. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग. कई बार ऐसा होता है कि आप हैंड राइटिंग को रीड नहीं कर पाते हैं. एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज़ रिटन. और आप डिपेंड करते हैं, आपके माइंड में ये आता है कि आप उस चीज़ को गैस करते हैं कि ये वर्ड क्या हो सकता है. एज अ रिज़ल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, कि जो आप कॉपी कर रहे हैं उसमें और आपकी फ्रेंड की कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी हो सकता है ये. एंड मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज़ समवॉट सिमिलर, और मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी में भी इसी तरह से सिमिलरिटी होती है. एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, कि स्क्राइब्स कॉपी करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स को. एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर एंड सेंटेंस देयर. एक वर्ड इधर से उधर हो गया, मतलब चेंज हो गया, सेंटेंस चेंज हो गया. एंड दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different. हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो पहले कॉपी थी उसमें से अब यहाँ पर दूसरी कॉपी में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. एंड दिस इज़ a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. कि ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है कि रियल या फिर हम कहें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है ऑथर की, वो आज हमें शायद ही मिले. वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, कि हम टोटली डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, जो बाद में कॉपियाँ बनाई गई हैं स्क्राइब्स के द्वारा, उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं. एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट to guess what the author had originally written. So हम historians अभी क्या डिपेंड करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कि जो historians हैं वो रीड करते हैं डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को, वर्जन्स को ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस करने के लिए व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. सिर्फ गेस करके और फिर उसको कॉपी करते हैं. ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट different times. On occasion authors revised their chronicles at different times. जब कई बार ऐसा होता है कि ऑथर रिवाइज करते हुए क्रॉनिकल्स को डिफरेंट टाइम्स में लिख देता है. द 14th century chronicles जियाउद्दीन बैरोनी wrote his chronicles first in 1356. उन्होंने अपनी फर्स्ट जो क्रॉनिकल्स लिखी थी वो कब लिखी थी, 1356 में. एंड अनदर वर्जन 2 years later, और जो दूसरा वर्जन उन्होंने लिखा वो 2 साल के बाद लिखा. एंड द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s. 1960 तक जो पहला वर्जन था वो उन्हें बिल्कुल हिस्टोरियंस को नहीं मिलता है. और जो दोनों हैं वो क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट माने जाते हैं. एंड इट रिमेंड लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन. अब हम कह सकते हैं कि जो
अभी भी वो हमें मिला नहीं है लाइब्रेरी कलेक्शन के अंदर, वो अभी भी लॉस्ट है। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। like the video and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.